Assalamualaikum guys, you are watching my YouTube channel Azim Shehzad Official. Today our topic is from transportation engineering to date is highway pavement. So today we discuss all about the surfaces of highway and all the movement surfaces, all the transportation surfaces is called highway pavement. पेवमेंट हमारे पास वो सर्विसेज होती है जिसमें हमारे पास मूवमेंट होती है या जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है इन सारी सर्विसेज को हम हाईवे पेवमेंट कहते हैं। अब highway pavement is the surfaces or the structure that have a superimposed layer of selected and processed material whose function is to distribute the applied vehicles load to the subgrade। अब हमारे पास सबग्रेड क्या चीज़ है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबग्रेड हमारे पास वो सर्फेसेस है जो कि हमारे पास सॉइल का जो सर्फेस है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास सबग्रेड होता है और इसके ऊपर हम मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ सर्फेसेस बनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ बनाने के लिए। तो हमारे पास वो स्ट्रक्चर, वो सर्फेस in which we have a superimposed layer, in which we have to impose a layer and that layer is of the selected material of a process material। हमारे पास वो जो सर्फेसेस है वो हमारे पास सेलेक्टेड मटेरियल की बनी होती है और प्रोसेस मटेरियल की बनी होती है और इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है कि हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे अप्लाइड व्हीकल लोड टू द सबग्रेड, कि हमारे पास जो व्हीकल का जो लोड आता है, जितने भी रोड्स में जो व्हीकल्स होते हैं या जो भी ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो भी पैसेंजर्स होते हैं, इन सारों का जो लोड है वो सबग्रेड को मुंतकिल करने का जो किरदार है वो कौन अदा कर रहा है, वो पेवमेंट अदा कर रहा है। नाउ व्हाई वी शुड प्रोवाइड पेवमेंट? पेवमेंट इज प्रोवाइडेड for smooth, safe and comfortable ride without any delay. We are providing the pavement for the safe, smooth and comfortable ride without any delay, without any time wasting. So why we should provide pavement? Another one is to limit the noise and air pollution. If there is a zigzag road, if there is a rough road, so as you notice there should be a noise pollution and also an air pollution. So to avoid these we are using a smooth pavements. There should have to be a comfortable for the passengers and for all the users. So now there are two types of pavements. First one is the flexible pavement and other one is the rigid pavement. Now we should discuss it separately. That what is flexible pavement? Flexible pavement distribute wheel loads to the lower layers. Now rigid pavement is also distribute the wheel loads to the lower layer. But what's the difference between them? The difference is the binder in the flexible pavement is bituminous material. We should provide a bitumen as a binder in the flexible pavements, while in the rigid pavement the case is not the same. In the rigid pavement distribute the wheel loads over a wide area of the subgrade, but the binder is cement, concrete or maybe reinforced concrete. Now what is this? The binder in rigid pavement is cement or concrete, while the binder in the flexible pavement is a bitumen material. Now the binder in the rigid pavement should also have a reinforced concrete. Now those concrete in which we are using steel is known as reinforced concrete. So now this is the structure, this is the road cross sections and this is the level of the soil का जो लेवल है, जो नेचुरल सरफेस लेवल है वो हमारे पास क्या है, वो ये है। नाउ इसकी ये जो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सबग्रेड कहते हैं। सॉइल का जो लेयर है इसको हम सबग्रेड कहते हैं। जब रोड बनती है तो सबसे पहले इस सबग्रेड को हम कंपैक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो हमारे पास जो लेयर आता है वो सब बेस का है, फिर इसके ऊपर जो लेयर आता है वो बेस कोर्स होता है और इसके ऊपर जो लेयर आता है वो सरफेस कोर्स होता है या हम इसको वीयरिंग कोर्स भी कहते हैं। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स बनाने के लिए इन कोर्सेज को आपने बनाना होता है अगर आप फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनाते हैं। वाइल इन रिजिड पेवमेंट वी शुड हैव टू प्रोवाइड ओनली टू कोर्सेज एंड दैट इज द सबग्रेड एंड द रिजिड पेवमेंट कंक्रीट कोर्स। While on the other hand, there should have a flexible pavement of another type that have three courses, in which the first one is the subgrade, the second one is the base course, and the third one is the surface course. While in the flexible pavement, these courses should have to be formed. Now moving forward, stress is transferred to subgrade lower than the contact pressure under the wheel load applied on pavement। अब इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास ये तो सबग्रेड है, ये तो नेचुरल सरफेस लेवल है और जो रोड का जो सबसे ऊपर जो सरफेस है उसको हम सरफेस कोर्स या व्हीलिंग कोर्स कहते हैं। अब इसके ऊपर गाड़ियाँ गुजरेंगे तो जितनी भी व्हीकल्स का जो लोड है वो जो है और नीचे जो लोड आता है ये लोड तो ट्रांसफ़र होगा सरफेस कोर्स से सबग्रेड तक, ये लोड ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पर व्हील से जो सरफेस कोर्स पे जो लोड लगता है और यहाँ पर लोड जो सबग्रेड तक मुंतकिल हो जाता है, इन दो लोड्स में के दरमियान में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों होता है? यहाँ पर जो लोड आता है ये ज़्यादा होता है और एल नॉट जो है ये कम हो जाता है। ये क्यों कम हो जाता है कि हमारे पास दरमियान में जितनी भी कोर्सेज है वो some type or some amount of load they can suck and they can bear it, so this can decrease the load amount। यहाँ पर जो लोड लगता है वो ज़्यादा होता है और नीचे कम हो जाता है क्योंकि दरम्यान में जो कोर्सेज है वो कुछ लोड को क्या करेगा, वो बियर कर लेगा, वो बर्दाश्त कर लेगा, तो नीचे हमारे पास जो लोड आएगा वो कम आएगा।
तो इसी बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो एल नॉट जो है वो हमेशा कम होगा एल से, और एल जो है ऊपर वाला कोर्स लोड है और ये नीचे वाला है। नाउ अब ये जो कम होता है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये कितना कम होगा, और ये जो कोर्सेज है ये कोर्सेज किस किस तरह ये लोड को बियर करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा दो ही चीज़ों में। एक चीज़ हमारे पास है थिकनेस ऑफ द रोड, अगर आपके रोड का थिकनेस जितना भी ज़्यादा होगा तो इतना हमारे पास वो ज़्यादा लोड को बियर करेगा। सेकंड वन मटीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी ही आप अच्छी मटीरियल और एफिशिएंट मटीरियल आप यूज़ करेंगे रोड में तो हमारे पास जो है ना वो लोड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा हो जाएगा और सबग्रेड में बहुत कम लोड आएगा। अब हमारे पास है कि पेवमेंट एफिशिएंट कब होगा, वो इफेक्टिव कब होगा, इफ इट्स एबल टू डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड स्ट्रेसेस थ्रू अ लार्जर एरिया पर यूनिट थिकनेस ऑफ द लेयर। अगर हमारे पास व्हील लोड को ये पेवमेंट अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा पूरी एरिया में तो हमारे पास वो जो पेवमेंट होगा वो चाहे फ्लेक्सिबल होगा चाहे वो रिजिड होगा तो वो हमारे पास इफेक्टिव होगा, वो एफिशिएंट होगा। इस बात का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जितना हमारे पास एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास फोर्स कम लगेगा। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास जितना, अगर हमारे पास लोड लगता है 10 पाउंड का और वो इतनी ही एरिया पे लगता है, दूसरी साइड पे अगर हमारे पास वही 10 पाउंड लोड है लेकिन वो इस ही एरिया पे लगता है तो कौन ज़्यादा स्ट्रेसेस, किस में ज़्यादा स्ट्रेसेस होंगी, स्ट्रेस इसमें ज़्यादा होगा इसकी बनस्पत, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है ये कम है और इस पर लोड ज़्यादा है। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है और लोड वही है तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेसेस कम होंगे और यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एरिया कम है, तो जब एरिया कम होगा तो हमारे पास स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगे, जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास स्ट्रेसेस कम हो जाएंगे। ये हमारे पास स्ट्रेस का फार्मूला है। तो इसमें वही बात करती है कि अगर आपने लोड को सही डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपने लार्जर एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड कर सकता है और ये वर्टिकल अलाइनमेंट पर भी डिपेंड करेगा। अब अलाइनमेंट क्या चीज़ है, अलाइनमेंट हमारे पास एक रोड बनाने का जो लेवल है उसको जब आप डिटरमिन करते हो तो वो हमारे पास अलाइनमेंट होता है। पेवमेंट अलाइनमेंट में किस चीज़ क्या क्या होता है, एक हमारे पास होता है एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट हम कहते हैं फिलिंग को, दूसरा हमारे पास आता है कटिंग और तीसरा हमारे पास आता है सरफेस लेवल। ये तीनों चीज़ें यूज़ होती है एक अलाइनमेंट को डिटरमिन करने में। अब ये किस तरह डिटरमिन होंगी, हम ख्याल रखेंगे कि हमारे पास प्रोवाइड अबाउ ग्राउंड वाटर टेबल टू कीप द सबग्रेड ड्राई ड्यूरिंग मानसून सीजन। अगर हमारे पास बारिशों का सीज़न है, ये मानसून सीज़न है, तो आपने हमेशा सबग्रेड को एमएसएल को आपने क्या रखना है, वो जो फ्लड लेवल है, वो जो वाटर लेवल है उससे ऊपर रखना है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये जो सबग्रेड है और ये हमारे पास फ्लड लेवल है, ये हमारे पास वाटर लेवल है या रेन वाटर लेवल है या ये हमारे पास रनअप का लेवल है, अगर ये रनअप लेवल इससे ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वो पानी तुम्हारी ये जो सड़क है इसके ऊपर खड़ा होगा, तो हमारे पास ये फिर एलिमेंट ठीक नहीं होगा, ये अनएफिशिएंट होगा। तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि अगर आपने सबग्रेड को बनाना है तो सबग्रेड हमारे पास जो है ना वो रनअप से ऊपर होना चाहिए। हमारे पास अब ये जो रोड है इसमें ये बियरिंग कोर्स है, ये बेस कोर्स है, ये सब बेस है और ये सब ग्रेड है। अब ये किस चीज़ की कोर्सेज है, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है। इससे पता चलता है कि हमारे पास ये क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट में व्हील का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो सब ग्रेड तक आ जाता है। Now there is less force in rigid as compared to flexible because every layer in flexible contribute in load bearing while not in rigid. So as we already said that in rigid pavement there are only 2 or 3 courses, while in flexible pavement there is base course, there is subgrade, there is subbase, and there is bearing course or surface course. So there are large number of courses in flexible pavement as compared to rigid pavement because in flexible pavement all the layers are contributing in bearing the load while not in rigid. In rigid case there are the only bearing capacity is due to the bearing course, due to the surface course, while in the flexible pavement there is a large number of layers and every layer is responsible for load bearing. हमारे पास जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में बहुत सारे लेयर्स होते हैं और हर एक लेयर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है लोड बियरिंग में, लोड को लेने में, जबकि हमारे पास रिजिड पेमेंट में इस तरह नहीं होता। टॉप लेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एज द हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर इट्स। फ्लेक्सिबल पेमेंट में और रिजिड पेमेंट में हमारे पास जो टॉप लेयर होता है, बियरिंग कोर्स जो होता है, वो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्योंकि हमारे पास सारा जो लोड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्टेक्ट होता है इसके साथ, तो वही हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। हाई क्वालिटी प्लेन सीमेंट कंक्रीट कॉल पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट। पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट किसी भी कंक्रीट को कहते हैं जिसमें हमारे पास जो प्लेन सीमेंट होता है वो हाई क्वालिटी का होता है और वो सस्टेन कर जाता है 45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। हमारे पास वो कितने फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस बेयर करेगा, 45 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अदर टाइप्स ऑफ पेमेंट में हमारे पास आता है सेमी रिजिड पेमेंट और कंपोजिट पेमेंट। इसमें हमारे पास रिजिड पेमेंट भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है, तो इस वजह से हम इसको कंबाइन कहते हैं, कंपोजिट पेमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास है इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक पेमेंट, ICBP हम इसको कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड द रिजिड पेमेंट। हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट जो हमारे पास जो टर्कोल से हमारे पास जो रोड बनते हैं वो हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट के होते हैं और कंक्रीट से जो हमारे पास पेमेंट बनती है इसको हम रिजिड पेमेंट कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारे पास जो बाइंडर होता है वो हमारे पास बिटुमेन होता है
वाइल रिजिड पेवमेंट में हमारे पास जो बाइंडर होता है वो हमारे पास कंक्रीट से बना होता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में डिफॉर्मेशन जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास तुम्हारी सब ग्रेड में अगर डिफॉर्मेशन आ जाए, वो बैठ जाए, इसमें सेटलमेंट आ जाए, तो वो बेस कोर्स और सब बेस और इसी तरह वो बियरिंग कोर्स में इसकी डिफॉर्मेशन इसी तरह ही होती है, जबकि हमारे पास रिजिड पेवमेंट में इस तरह नहीं होती। अगर आपके पास सब ग्रेड में सेटलमेंट भी आ जाए तो हमारे पास कंक्रीट में इसी तरह का सेटलमेंट नहीं आता, वो हमारे पास शो नहीं होता। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में लोड ट्रांसफर होता है सब वेरियंग कोर्स से सब बेस से बेस कोर्स और फिर सब ग्रेड को, जबकि हमारे पास रिजिड पेवमेंट में लोड ट्रांसफर नहीं होता। सबसे ज़्यादा लोड जो लेता है वो हमारे पास जो सरफेस कोर्स होता है वही लेता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट लो कास्ट का होता है क्योंकि इसमें कंक्रीट नहीं होता, बिटुमेन तरकोल से बना होता है और इसका मेंटेनेंस जो है ना वो ज़्यादा होता है क्योंकि आपने बार बार इसको मेंटेन करना होता है, वो बार बार ख़राब हो जाता है। जबकि हमारे पास रिजिड पेवमेंट का इनिशियल जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि बाज़ दफ़ा आप इसमें स्टील यूज़ करते हैं, रिइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास इसका जो इनिशियल कास्ट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मेंटेनेंस कम होता है क्योंकि ये बार बार ख़राब फिर नहीं होता, ये मजबूत होता है। इसका फ्लेक्सिबल पेवमेंट का जो लाइफ स्पैन है वो 10 to 15 ईयर्स है और हमारे पास रिजिड पेवमेंट का जो लाइफ स्पैन है वो 30+ ईयर्स है। सरफेस नॉट लेड डायरेक्टली ऑन सब ग्रेड, हमारे पास फ्लेक्सिबल पेवमेंट में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो आपने सरफेस कोर्स को डायरेक्ट सब ग्रेड में नहीं लेड करना होता है, मतलब इसको डायरेक्ट उसमें नहीं लाई करना होता है, जबकि हमारे पास रिजिड पेवमेंट में कंक्रीट से नीचे डायरेक्ट सब ग्रेड होता है और कोई लेयर्स नहीं होती। रोड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सब ग्रेड स्ट्रेंथ, अगर आपका सब ग्रेड स्ट्रेंथ पुल है तो आपका रोड स्ट्रेंथ पुल है, जबकि रिजिड पेवमेंट में इस तरह नहीं होता। अगर आपका कंक्रीट स्ट्रेंथ पुल है तो आपका जो रोड है वो पेवमेंट है वो स्ट्रेंथ पुल है, लेकिन फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सब ग्रेड। रोड यूजेस इन 24 आवर्स, अगर आप फ्लेक्सिबल पेवमेंट का रोड बनाते हैं तो 24 आवर्स के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंक्रीट का जब रोड बनाते हैं तो आपको 14 दिन उसको वेट करना होगा, इसकी क्यूरिंग करनी होगी, फिर जब वो अपना स्ट्रेंथ अचीव करेगा मिनिमम आप जो 50% जो स्ट्रेंथ वो 14 डेज़ में अचीव कर लेगा, तो फिर इसके बाद आपने इसको यूज़ करना है। तो इसमें टाइम डिपेंडेंट है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा यूज़ करने में और इसमें कम टाइम लगेगा। अब हैवी व्हीकल्स प्रेफर रिजिड पेवमेंट एज फॉर लेस फ्यूल कंजम्पशन। फॉर हैवी व्हीकल्स, जो जिस व्हीकल्स का जो लोड है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम रिजिड पेवमेंट को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि रिजिड पेवमेंट जो है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसका लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हमारे पास जो हैवी व्हीकल्स है उसके लिए हम प्रेफर करते हैं रिजिड पेवमेंट को, और इसमें उसका फ्यूल कंजम्पशन भी कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनाएंगे और वो जो है वो हैवी व्हीकल्स हो तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में डिफॉर्मेशन आ जाती है, तो इसका जो टायर का जो डिफॉर्मेशन है वो इस तरह चलता जाएगा, तो हमारे पास इसमें फ्यूल कंजम्पशन फिर ज़्यादा हो जाएगा, जबकि रिजिड पेवमेंट में इस तरह नहीं होता, वो रिजिड होता है तो इससे वो फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। अब ये जो हमारे पास फ्लेक्सिबल पेवमेंट का जो लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें हमारे पास उसके दरमियान में भी कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी होती है, जैसा कि हमारे पास कुछ स्प्रे करने होते हैं, तो सबसे ऊपर टॉप सरफेस वेरियंग कोर्स पे जो स्प्रे होता है वो सील कोट का होता है, फिर सरफेस कोर्स और बाइंडर कोर्स के दरमियान जो स्प्रे होता है वो टैग कोट होता है, और बाइंडर कोर्स और बेस कोर्स के दरमियान जो स्प्रे होता है इसको हम प्राइम कोट कहते हैं। अब हम हर एक को अलग अलग डिस्कस करेंगे कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये इसके डायमेंशंस है कि इसका जो वेट है वो किस तरह होना चाहिए। अब उसने सब ग्रेड फिर सब बेस है, लेकिन उसने बेस कोर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अब बेस कोर्स के 2 हिस्से हैं, एक है बाइंडर कोर्स और दूसरा है हमारे पास बेस कोर्स। इस बेस कोर्स और इस बेस कोर्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, इस बाइंडर कोर्स में हमारे पास एग्रीगेट बिगर साइज़ के होते हैं और सरफेस कोर्स में हमारे पास एग्रीगेट फाइनल साइज़ के होते हैं, इसमें एग्रीगेट्स बिगर साइज़ के होते हैं और इसमें छोटे साइज़ के होते हैं। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारे पास ये जो बाइंडर कोर्स है इसमें बेस कोर्स होगा, लेकिन इस बेस कोर्स में कुछ बिटुमेन ऐड हो जाएंगे, तो वो हमारे पास वो बेस कोर्स पे बाइंडर कोर्स बन जाएगा। वही बेस कोर्स होगा, लेकिन जब इसमें आप बिटुमेन ऐड कर लेंगे थोड़ी सी, तो वो हमारे पास बाइंडर कोर्स बन जाएगा और सरफेस कोर्स में पेवर बिटुमेन होता है। अब प्राइम कोट का पर्पस क्या है, इस स्प्रे करना होता है किस चीज़ के लिए, ताकि ये बॉन्ड अच्छी तरह से बना ले लेयर्स बिटवीन एस्फाल्ट कोर्स एंड क्रश एग्रीगेट बेस। एस्फाल्ट और क्रश एग्रीगेट बेस के दरमियान जो कोट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास प्राइम कोट होता है। पर्पस इसका क्या होता है कि आप उसके साथ जो वाइड्स है उसको फिल कर दे, बॉन्ड जो है ना लूज मटेरियल को उसकी बॉन्ड को मजबूत कर ले, हमारे पास जो सरफेस है उसको टफ बना ले, और इसमें एडहेजन काफ़ी नामिना करते हैं। एडहेजन दो ही चीज़ों को किसी सरफेस के साथ उसके जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होता है वो उसको हम एडहेजन कहते हैं। टेक कोट में हमारे पास एमल्सिफाइड बिटुमेन होता है, लेयर्स है ये बिटवीन एस्फाल्ट बेस कोर्स एंड एस्फाल्ट वेरिंग कोर्स के दरमियान जो स्प्रे होता है उसको हम टेक कोट कहते हैं, और कंक्रीट कोट और एस्फाल्ट कोट के दरमियान भी हम एक स्प्रे करते हैं और वो भी टेक कोट कहलाता है। अब सील कोट, सबसे ऊपर जो सरफेस है सरफेस कोर्स, इसके ऊपर जो स्प्रे होता है वो सील कोट होता है, ये प्रोटेक्टिव कोट होता है टू फिल द पोर्स। अगर आपके रोड का जो सरफेस है इसमें कोई पोर्स है तो उस पोर्स को फिल करने के लिए आपने सील कोट अप्लाई करना है, नॉट टू पेनिट्रेट वाटर। और ये किस लिए होता है, ताकि वाटर पेनिट्रेट ना हो सके, वाटर इसके ऊपर इसके अंदर ना जा सके। पॉक्स सील और स्लरी सील, इसके दरमियान क्या डिफरेंस है, इसमें फिर इसकी 2 टाइप्स है, पॉक्स सील और स्लरी सील। पॉक्स सील में पेवर बिटुमेन होता है, जबकि स्लरी सील में कुछ पाउडर ऐड हो जाते हैं पाइन एग्रीगेट की या उसी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो फिर ये स्लरी सील बन जाएगा। अब सबग्रेड के लिए मुख्तलिफ टाइप के टेस्ट होते हैं, CBR टेस्ट होता है। अब सबग्रेड को आपने कम्पैक्ट करना होता है,
अब जब सबग्रेड आप कम्पैक्ट कर लेंगे तो इसके बाद आप इसके ऊपर आप क्या बनाएंगे, इसके ऊपर आप सब बेस बनाएंगे। तो सब बेस के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले सबग्रेड को कम्पैक्ट करना होगा। अब इसका जो कम्पैक्शन है वो किस लेवल तक होगा तो वो आप डिटरमिन करेंगे। बाज़ जगहों में आप मॉडिफाइड सबग्रेड यूज़ करेंगे, बाज़ जगहों में आप ट्रांसपोर्ट की सबग्रेड यूज़ करोगे। इसमें आपने सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अगर आपका सॉइल सही है, आपका सॉइल स्ट्रेंथफुल है, तो फिर आपने मॉडिफाइड सबग्रेड यूज़ करना है। अगर आपका सॉइल वीक है तो फिर आपने ट्रांसपोर्ट की सबग्रेड यूज़ करना है। इसमें डिफरेंस क्या है? केमिकल सेमेंटियस मिक्स विद सबग्रेड इन कम्पैक्टेड। आपने सबग्रेड के साथ कुछ केमिकल सेमेंटियस केमिकल ऐड करने हैं और फिर आपने इसको कम्पैक्ट करना है, तो हमारे पास फिर बन जाएगा मॉडिफाइड सबग्रेड कम्पैक्टेड। While on the other hand, the transport is subgrade. If there is a weak subgrade, so then a new soil is transported to an existing natural soil and compacted. अगर आपका जो existing soil है वो weak है तो आपने कहीं से strengthful subgrade, strengthful soil जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है, वो उसके ऊपर बिछाना है और फिर आपने इसको कम्पैक्ट करना है। तो ये हमारे पास सबग्रेड्स की कैटेगरी हो गई। अब हमने किस किस चीज़ के ख्याल रखना है? हमने ख्याल रखना है कि हमारे पास ये जो ग्रेड लाइन है, हमने जो अलाइनमेंट की बात की, तो अलाइनमेंट आपने बैलेंस करना है कि आपकी कट और प्लेन बैलेंस हो जाए। ग्राउंड वाटर आपने जो अलाइनमेंट देना है वो अबाउ द फ्लड लेवल, अबाउ द वाटर लेवल, अबाउ द रनवे ऑफ द वाटर। रॉक्स आपने अवॉइड करने हैं, इसको एक्सकवेट करना। अगर आप रोड बनाते हैं और इसके फील्ड में या ग्राउंड में अगर आपके पास एक रॉक आ जाए तो रॉक तो स्ट्रेंथफुल होता है, तो फिर आपने इसको एक्सकवेट करना नहीं होता है और कोर्सेज के बजाय आपने इसके ऊपर बस वही ही वियरिंग कोर्स डालना है। अब कम्पेक्शन के लिए मुख्तलिफ टाइप की टेस्ट होती है सबग्रेड के लिए। आपने इसकी डेंसिटी फाइंड करना होगा, चाहे वो सैनकोन टेस्ट हो या कोई और टेस्ट हो। लेकिन अगर आपके पास फील्ड में जो डेंसिटी आपने फाइंड कर दी और लैब में आप डेंसिटी फाइंड कर दे, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपने कैलकुलेट करना है कि वो 95% से ग्रेटर हो या इसके इक्वल हो। अगर आपकी फील्ड की डेंसिटी और आपके लैब की डेंसिटी की जो कम्पेक्शन है अगर वो 95% से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कम्पेक्शन ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपने कम्पेक्शन दोबारा करना होगा या कोई और ट्रांसपोर्टेड सबग्रेड यूज़ करना होगा। अब CBR ये भी सबग्रेड के लिए एक दूसरा टेस्ट है, इसको हम कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने सबसे पहले एक मोल्ड लेना है, मोल्ड में आपने स्पेसिमेन को उठाना है और इस स्पेसिमेन को जब आप मोल्ड में डालते हैं तो आपने इसको कम्पैक्ट करना है 5 लेयर्स में। अब 5 लेयर्स में आपने जो ब्लोज लगाने हैं इसमें 30 to 65 ब्लोज आपने लगाने हैं। ब्लोज हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर एक प्रेशर डालना होता है, लोड डालना होता है ताकि हमारे पास ये जो सबग्रेड है इसको हम कम्पैक्ट कर सकें। तो हमारे पास एक प्लंजर होता है जो कि पेनेट्रेट करता है मशीन के ज़रिए और लोड मेजर करता है 2.5 mm पेनेट्रेशन पे और 5 mm पेनेट्रेशन पे। आपने स्पेसिमेन बनाना है, स्पेसिमेन के ऊपर आपने लोड डालना है और आपने ये फाइंड करना है कि 2.5 mm जब पेनेट्रेशन इसमें आ जाए। पेनेट्रेशन का मतलब ये है कि आपने इस नीडल की जो प्लंजर है ये प्लंजर अगर आपके स्पेसिमेन के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये सबमर्ज हो जाएगा। अगर ये 2.5 mm से ज़्यादा 2.5 mm से ये सबमर्ज हो गया और इसने कितना लोड बर्दाश्त कर दिया और आप जब ये 5 पेनेट्रेशन पे आ जाए, 5 mm पेनेट्रेशन पे आ जाए तो इसने कितना लोड मेजर कर दिया, कितना लोड रजिस्ट कर दिया गया, तो इसको हम नोट करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होंगी वो हमारे पास CBR की वैल्यू होंगी और इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है सबग्रेड कितना मजबूत है अगेंस्ट द कम्पेक्शन। CBR किस लिए यूज़ होता है? फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सबग्रेड स्ट्रेंथ। अगर आपके सबग्रेड के स्ट्रेंथ को आपने अचीव करना है या इसको मालूम करना है रोड के लिए या किसी और पेमेंट के लिए तो आपने CBR टेस्ट को यूज़ करना है। CBR टेस्ट का फार्मूला क्या है? लोड सस्टेन बाय सॉइल एट 2.5 mm पेनिट्रेशन एंड लोड सस्टेन बाय द स्टैंडर्ड एग्रीगेट